यार आई एम अहमद रऊफ एंड आई स्टार्टेड टेलीमार्ट बैक इन 2012. उस टाइम पे हमें एक स्पेस दिखी, पेनिट्रेशन स्पेस की, यार ई कॉमर्स गेम कुछ अच्छी हो सकती है. आई हैव बीन एन ई कॉमर्स बायर सिंस 2008 और 9. मैं अमेजोन का सेलर भी था, बाकी सारी चीज़ें. अमेजोन की हवा बाद में चली गई पाकिस्तान में. सो आई वॉज एन अमेजोन सेलर. मैं फ्लिपकार्ट का सेलर था, इंडिया का सूक का सेलर था, अली बाबा का सेलर था. तो आई वॉज इन द ई कॉमर्स स्पेस ग्लोबली, लेकिन मुझे दिख रहा था कि पाकिस्तान में एक स्पेस है, तो वी स्टार्टेड टेलीमार्ट. एंड फॉर्चुनेटली अलहमदिल्ला वो अच्छी क्लिक करी, चीज़ें दिखी हमें कि स्पेस है. बट देन अगेन वी रियलाइज वेरी सून के रिटेल इज समथिंग दैट विल डोमिनेट इन पाकिस्तान. तो वी थॉट क्या, चलो रिटेल में चले जाते हैं. एंड करंटली अलहमदिल्ला in terms of number we are the second largest marketplace in the country, the only मतलब marketplace in Pakistan जो पाकिस्तानी है. एंड जाहिर सी बात है दूसरी जो बड़ी मार्केट प्लेस है वो इंटरनेशनल है. सेकेंडली हमारा रिटेल विंग जो है अलहमदिल्ला इट्स फ्लरिशिंग. वी हैव 40 स्टोर्स इन 27 cities of Pakistan. And other than Telemart also, I run a company by the name of Airy Ventures, which is one of a kind brand accelerator in the country. We have catered to more than 150 brands till the date, जिसमें हर तरह का ब्रांड है. उसकी ई कॉमर्स भी देख रहे हैं, रिटेल भी देख रहे हैं. तो ई कॉमर्स इज समथिंग दैट आई लव, और वही चीज़ की पेनिट्रेशन के लिए आज तक मेहनत कर रहे हैं. चीज़ें डिफरेंट होती भी गई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज भी स्टैग्नेंट है हमारे मुल्क में. Right, Ji. Thank you. Uh, a very famous brand in Pakistan that's called Go Lootlo. So, what do you, sir? SN Islam sir. Assalamu alaikum. I'm Syed Hassan Aslam. I'm the managing director at GoLootlo. Or GoLootlo is primarily an engagement and incentivization platform. And we have been there since last 8 years, and it has been a very successful journey. I've been with the brand for last 4 years, and primarily we run an app-based platform. In parallel, we have a B2B partnership model with payment schemes, banks, telcos. So all in all, I think we are doing fairly well in terms of our downloads. We are 4.5 million. But when we look at our B2B space, I think we touch around 40 million people in terms of our reach. That said, in terms of how the utilization and the overall impact we create, so what we have seen over a period of at least 4 years since I have been looking at it, customers do need some sort of incentivization to create habits. True. So we come in for the brands where habit needs to be built in, and then obviously our effect tapers down a bit because then people know the brand, they trust the quality, they have experienced it. So that's how it is. Briefly about myself, before GoLootlo, I was the Chief Disruption Officer at OneLink. So my whole background has been digital payments for last 20 plus years. And my focus in GoLootlo has been to somehow streamline the whole customer experience and also bring in that payments aspect, which is not run-of-a-mill wallet play. So briefly, that's what GoLootlo Sir, is. perfect. Thank you. Now, I would like to request Mr. Saad Janda Saab, and I love the concept indulge. This is something that is a self-explanatory thing. So, could you please enlighten on this thing? Thank you very much. Thank you, Fikar, for inviting. So my name is Saad Jangra. I'm into e-commerce space since last 19 years. I started Symbios.pk back in 2006, and we run that e-commerce portal for almost 13 years. 2019 में हमने इसको sell कर दिया. We got exited, and in 2020 we started Indulge. So Indulge जो है एक B2B product है, it's a SaaS product, and our customers are restaurants of Pakistan. 2020 में जब कोविड आया तो पूरी दुनिया में जो है बिजनेसेस रुक गए, बिजनेसेस बंद कर दिए गए, लेकिन टोटली क्लोज नहीं हुए थे. यूएस में, चाइना में सबसे ज़्यादा जो है कोविड आया था, लेकिन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुई थी. हाँ, डाइन इन बंद था कई महीनों तक, शायद साल 2 साल तक डाइन इन बंद था, लेकिन टेक अवे, कर्ब साइड डिलीवरी, वो सब जो है एक दिन के लिए भी यूएस में बंद नहीं हुई थी. पाकिस्तान वाहिद कुछ कंट्रियों में से होगा जिसमें 4-5 महीने तक टोटली जो है इंडस्ट्री बंद हो गई थी. तो और जब रिज्यूम हुई तो सिर्फ डिलीवरी थी कई महीनों तक. तो उन दिनों में जो एग्रीगेटर्स हैं पाकिस्तान में, उन लोगों ने जो है मोनोपोलिस्टिक अप्रोच शुरू की, कमीशंस बढ़ा दिए, और भी जो है बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की.
तो देन वी स्टार्टेड इंडल्ज कि हम रेस्टोरेंट्स की जो अपनी खुद की जो वाइट लेबल वेबसाइट्स होती है वो वी स्टार्टेड इनेबलिंग दैट. उससे पहले भी कुछ वेबसाइट्स थी, लोग वो कॉमर्स यूज़ कर रहे थे, मेजेंटो पे थे, शॉपिफाई पे थे, लेकिन दैट वाज नॉट यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट फॉर रेस्टोरेंट्स. दो चार बड़े ब्रांड जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी वेबसाइट्स थी. आज के दिन भी अगर हम किसी भी जो ऐप एग्रीगेटर्स हैं उस पर जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारे पास तो खाना आ जाता है, वी गॉट द कन्वीनियंस. लेकिन जो दो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक मोबाइल ऐप खुद और जो रेस्टोरेंट, वो दोनों लॉसेस में जाते हैं. वो इसलिए कि रेस्टोरेंट हैज़ टू पे एटलीस्ट 30 to 35% ऑफ देयर रेवेन्यू ऑफ ईच ऑर्डर टू द मोबाइल ऐप. तो इस वजह से रेस्टोरेंट्स जो है वो खुश नहीं है आज के दिन भी, और हर रेस्टोरेंट चाहता है कि उसकी अपनी वेबसाइट, उसकी अपनी जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग की जो सर्विसेज हैं वो पावरफुल हो. और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ वी आर पावरिंग मोर देन 700 ब्रांड्स इन पाकिस्तान. अगर आप kebabjeez.com, californiapizza.com, बर्गर लैब, बर्गर क्लॉक, यूनाइटेड किंग, इनकी वेबसाइट्स देखेंगे नीचे अल्हम्दुलिल्लाह पावर्ड बाय इंडोज लिखा होगा. वी आर पावरिंग मोर देन 700 ब्रांड्स, 5000 लोकेशंस, एंड वी आर प्रोसेसिंग मोर देन 40,000 ऑर्डर्स डेली अल्हम्दुलिल्लाह. Perfect, ji, perfect. Now we have a very diversified portfolio of e-commerce, especially the Pakistani brands in place. Uh, the tone has already been set up. So to gain the audience interest, I've decided to engage you as a fight chat kind of a thing. So I've split questions into different categories. My first question with you all, it's a rapid fire thing that how have payments and lending evolved in the e-commerce ecosystem over the past 5 years? Because the concept is that what we have done after the pandemic. So, sir, start from you. So, Iftikhar, basically, like from brick and mortar model and experiencing cash payments at doorstep, right? Which is known as COD, cash on delivery, right now. And this was in the very much beginning of e-commerce industry, which had used these kinds of payment methods. और उसके बाद फिर evolved like this gradually evolved with the different payment and instantaneous payment methods, including but not limited to this credit card, debit card, mobile wallet payments, QR-based payments. So if you observe like past 5 years, it's like cumulative average growth rate is like 25 to 30% has been increased, right? And this is a good sign that people are now earning more towards digital payments. They are taking an interest into the digital landscape as well, and they have started using the mobile wallets as a mode of payments in order to attain the convenience and ease of payments is actually enabling them to bring a confidence over an e-commerce industry. So the customer trust, or when you talk about payments which is successfully transacted from the customer end, and the goods or services which he is trying to buy or attain from the e-commerce websites. So this creates a confidence on the customer level that whatever he is purchasing, it is being delivered over to their doorstep. So alhamdulillah, now we are at the pace at which the e-commerce industry is growing continuously, and people are adopting the digital payments at the same time. Yeah. Perfect. The same question to Ahsan Hussain Saab. And this. Sorry, my apologies. Ahsan Aslam Saab. Ji. So I think post-COVID payments, am I audible? Okay. So post-COVID payments has definitely evolved, and it is accessible now. I think very few websites you will come across which do not offer some sort of a payment method to you. So I would say the payments has evolved. That was a need, and with the push from the regulator, RAS coming in, and the general push in terms of, if you look at pre-COVID numbers of banking app utilization and post-COVID, it has gone like double-digit growths every year. Lending is something which we have not been able to crack the code in Pakistan. True. You pick up any startup, you pick up any conventional one. SME lending, I think I just read a report, 200,000 loans in a year. Imagine in a population of 225 million, you have a 200,000 SME loans being granted. So lending, I would
suggest, like I would comment that it is not there yet because of the lack of infrastructure. The NPLs are high. You find creative use cases coming into the picture, but they fizzle out, and you see how that impacts the whole trust issue in the society. The micro lending just messed up everything. So I believe payments, yes. Lending, no. Right. Ahmed Saab, I've just top up on this question because when we consider the mobile phone is the most luxurious item, usually 25,000 से अब जाके वो 4 लाख पे चला गया है. So my question is that what is driving the demand factor, more flexible financing solution for the online stores? जैसे इन्होंने दो चीज़ें ऐड की ना कि एक पेमेंट, यस पेमेंट आसान हो गई है. साथ भाई और हम जब से ई कॉमर्स कर रहे हैं, ये तो और भी हमारे से पुराने हैं, तो इनको अंदाज़ा होगा कि कितना पेनफुल था एक पेमेंट लेना कस्टमर से. और एक मैक्सिमम आप ये करते थे, बैंकिंग ट्रांसफ़र आप ले लेते थे कि यार IBFT कर दें मुझे, जिसमें भी कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता था क्योंकि एक बहुत छोटी इंडस्ट्री थी. सेकेंडली इन्होंने बोला लेंडिंग फैसिलिटी तो है ही नहीं, जाहिर सी बात है. सही है, अब उसमें शरिया बेस्ड लेंडिंग भी आती है, दूसरी चीज़ें हैं जो ग्लोबली हो रही हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रही. जो ई कॉमर्स जो आपका सवाल है ना, उस पर जो तीसरा पॉइंट टॉपअप होता है वो ये होता है कि पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग आपके बराबर में जो इंडिया में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, वो हमेशा बाय नाउ पे लेटर चलता है ई कॉमर्स पे. कि जहाँ पे आपको लगता है ना कि यार प्राइस इतनी इन्फ्लेट हो गई है चीज़ों की कि भाई एक चीज़ आपने बोला भाई अब आईफोन है, पहले जब हम बेचते थे ना, पहला आईफोन शायद मैंने बेचा होगा, शायद वो 50,000 रुपये का था. iPhone 5 या iPhone 4 शायद बेचा होगा, 50,000 रुपये का होगा या इससे भी कम था. और वो होते होते कहाँ तक आ गया, आज सिर्फ एक फ़ोन पे ड्यूटी 1,70,000 से ऊपर है. तो जब इतना ही इन्फ्लेट कर जाती है ना प्राइसेस, तो आपको कस्टमर को फैसिलिटेट करना है कि कस्टमर की, अब जैसे इन्होंने बोला ना, आपको क्या चीज़ देनी है, डिस्काउंट देना है कस्टमर को. आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ देनी है कि वो बोले कि हाँ यार मैं ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ. तो उसके लिए बाय नाउ पे लेटर होता है. जब बाय नाउ पे लेटर के नाम पे हमारे मुल्क में 2-3 चीज़ें लॉन्च हुई हैं, वो मैं कह रहा हूँ उसके नाम पे लॉन्च हुई है, वो था नहीं कभी भी वो चीज़. और फिर वो हुआ ये $15 मिलियन लिटरली उन्होंने बर्न किया, वो चले गए पाकिस्तान से. और लिटरली हम भी उनके साथ बैठ रहे थे तो हम उनको बता रहे थे ये जो चीज़ आप कर रहे हैं, मतलब गैम्बल भी नहीं है. एक तो ना गैम्बल में भी एक होता है कि इंसान भाई 5 में से एक दफ़ा जीत जाऊंगा मैं, ये गैम्बल भी नहीं खेल रहे, तो आप बिल्कुल जाके दीवार पे टक्कर मारने जा रहे हैं. True. लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ वो स्टार्टअप मेंटालिटी के लोग थे, उनके साथ कन्वेंशनल बैंकिंग माइंडसेट के लोग नहीं थे कि जो उनको गाइड कर सके कि क्या तरीकेकार होता है. तो अगर ई कॉमर्स को फैसिलिटेट करना है आपको और पेमेंट्स को चीज़ को सॉर्ट करना है, तो बाय नाउ पे लेटर इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू, जिससे आपकी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन जो है वो मल्टीप्लाई होती रहेंगी. और इंटरनेशनली ये चीज़ हो रही है और बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है. मैं जानता हूँ बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म आप उठा के देखें, दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, आई बाय वॉचेस, मतलब आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचेस. सही है, तो जो अगर मुझे कोई जानता है उसको पता है इसको घड़ियाँ पसंद है. सही है, अब मैं घड़ी लेने जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे पता है इतने $1,000 की घड़ी है, लेकिन अगर वो मुझे 12 महीने की इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है तो वाई नॉट. इस तरह पूरा एक प्लेटफॉर्म रेडी हुआ अल्फा मॉल जो बैंक अल्फला का है, वो अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर रहा है कि 12 महीने की इंस्टॉलमेंट पे ले लो और उसके पास ट्रांजैक्शन आ रही हैं. अगर वो COD पे ऑन करता है, क्या उसके पास ट्रांजैक्शन होती? नहीं होती कभी भी. तो आपको फैसिलिटेट करने के लिए इस तरह के गिमिक्स डालने पड़ते हैं ताकि कस्टमर बोले हाँ यार मेरे लिए आसान है और कन्वीनियंट है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करी, तो ना कि मैं जाके रिटेल पे जाऊँ और वहाँ पे जाके मुझे एक पूरी चीज़ कैश पे खरीदनी है, whereas यहाँ पे मुझे एक चीज़ पे फैसिलिटी मिल रही है. Right. Absolutely agreed. We do have a separate segment on the BNPL, but you have already touched this thing. Saad Saab, over to you on this question. बिल्कुल. दोनों चीज़ें मैं कहूँगा कि आफ्टर कोविड जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा आया है, वो आया है क्विक कॉमर्स का. 2020 से पहले हमारे पास क्विक कॉमर्स का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था. कोविड के बाद पांडा मार्ट ने जो स्टार्ट लिया, उसके बाद से हर घर की ख़वातीन और हमारी ग्रॉसरी मेनली जो है वो भी अब ऑनलाइन आ रही है. इससे पहले ऑनलाइन ग्रॉसरी का जो कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इससे जो है ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ी ग्रोथ और जो है बहुत बड़ा यूज़र बेस इंक्रीज़ हुआ है. जहाँ तक बात है ये बाय नाउ पे, देखें दोनों आइदर सेलर आइदर यूज़र, दोनों को फैसिलिटेशन चाहिए इस वक्त फंडिंग की. या तो बाय नाउ पे लेटर से जो है वो यूज़र जो है वो उसको जो है वो अपनी प्रोडक्ट को इजीली बाय कर सकता है, या तो सेलर को जो है लैंडिंग फैसिलिटी चाहिए कि वो जो है अपनी जो है इन्वेंट्री और उन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर सके. अनफॉर्चुनेटली दोनों ही चीज़ें पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन एक कुछ कोरियर कंपनीज और कुछ फिनटेक ने जो है वो सेलर पार्ट पे जो है वो एक फैसिलिटेशन शुरू की है, जिससे ये जो चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं. और आई गेस वेरी सून जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता जा रहा है, कई कंपनियों के साथ हम भी काम कर रहे हैं कि उनको यूज़र्स का पैटर्न बताएं कि यार कि वो किस तरीके से जो है कब जो है वो उनके घरों में जो है फूड आ रहा है, ताकि जो है उनकी जो एक हिस्ट्री उनके सामने आ सके और जो है इनको जो भी एक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रेडिट स्कोरिंग वगैरह की, इन सब चीज़ों की वो इम्प्रूव कर सकें इंशाल्लाह. Right. Thank you. The next segment is payment as a growth infrastructure. अच्छा सर, एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है ई कॉमर्स के अंदर, व्हेन यू टॉक अबाउट
the comparison, the payments, the COD versus the instant payment. अब मैं आपसे कहूँ जी COD, of course, it's a very healthy sign because we are also dealing and the major cash flow is coming from the COD sector. Instant payment के लिए what are the measures we have taken? What are the expectation from the banking sectors or the fintech sides? Thank you, Iftikhar. Basically, instant payments के ऊपर हमने like I have already earned is a few words on instant payments. अब देखो होता क्या है कि कस्टमर की जब वो पेमेंट इनिशिएट करता है, प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट को पहले डिस्कस करते हैं, देन मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन. तो पेन पॉइंट क्या था कस्टमर का? कस्टमर ने पेमेंट कर दी, अगले एंड पे यानी कि मर्चेंट्स के एंड पे वो पेमेंट रिसीव नहीं हुई. अगेन अब इससे हुआ क्या कि कस्टमर का जो ट्रस्ट था उस ई कॉमर्स के स्टोर के ऊपर वो उठ गया. ही इज़ विद द माइंडसेट नाउ कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया. वो गुड्स या सर्विसेज जो उसने परचेज करना चाहिए ई कॉमर्स के स्टोर से वो उसको रिसीव नहीं हुई. इस वजह से नहीं कि उसने पेमेंट कंप्लीट नहीं की, कस्टमर के पास से पैसे कट चुके हैं लेकिन मर्चेंट के एंड पे रिसीव नहीं हुए. और ऐसा अब लाइक ऑल ऑफ द ई कॉमर्स ओनर्स कैन विटनेस दिस स्टेटमेंट कि ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है एंड इट्स अ एक्चुअल प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट. सो व्हाट वी डिड फॉर इट, we build up an API which is called Transaction Inquiry API to reduce all of these gaps. जब तक पेमेंट का स्टेटस कंफर्म नहीं हो जाता from the merchant's end, they can use our Transaction Inquiry API to receive and fetch the final status of the transaction. So this is one of the initiative which we did. Instant payments, अब जब कस्टमर मर्चेंट को ये पता चल गया कि कस्टमर ने जो पेमेंट की है वो मेरे पास रिसीव नहीं हुई है और या फिर उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए, सो ही कैन इनिशिएट द रिफंड रिक्वेस्ट डायरेक्टली. सो दिस लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट कैन बी एलिमिनेटेड बाय फैसिलिटेटिंग द कस्टमर इन रियल टाइम, right, using this instant payment method. Secondly, when you talk about instant payment, it improves the cash flows for the merchants itself, so they can use that cash and reinvest into their inventory and bring up more goods, offer them different kinds of promotions, and they can start analyzing the data and the usage patterns of the customers. So there are a lot, and it's a huge industry now with the help of AI tools. They can simply analyze the consumer buying patterns, customer behaviors on different products. So instant payment is the key for e-commerce industry, and I believe in case if we can improve the user experience on the payment side, then certainly it would be a complete ecosystem for them to enable a lot of goods and services within this spectrum and expand phenomenally. Very insightful. Let's take a pause and let's take a survey that who is in favor of the COD. I just wanted to think that the COD is contributing is around 60 to 65% right now in the e-commerce sector. So anyone in the favor of the COD or the instant payment? Sir, I just missed the hands. I mean, the rest are out of the e-commerce. So the COD ones. That's the thing. And what about the instant payments? Okay. So it's a mixed feeler, but it also gives us the confidence, the trust, which we already had a detailed discussion in the first segment. But sir, अच्छा, इस पे मैं कुछ टॉप अप कर देता हूँ. देखिए ई कॉमर्स माइंडसेट जो है ना, जैसे यहाँ पे सीओडी के लिए हाथ कम खड़े हुए हैं, सही है, लेकिन Reality हो different. सकता है शायद ये बैंकिंग सेक्टर के बहुत सारे लोग वो प्रेफर करते हो कि यार हमारे घर पे पीछे तो पार्सल आ जाए, सही है. रियलिटी आपने 60-65% बोला, मैं इस नंबर को एग्री नहीं करता. उसका रीज़न है, मैं ये देखता हूँ कि 80 से 85% आज सीओडी होता है मार्केट में, और उसका रीज़न मेजर रीजंस हैं. देखें हर चीज़ को समझने के पीछे रीज़न है. एक तो माइंडसेट हमारे कस्टमर का बहुत डिफरेंट है, सही है. यही चीज़ इंटरनेशनली हो रही है, जहाँ जैसे मैंने बोला बाय नाउ पे लेटर आप करते हैं, या अगर मैं पहले ही डिस्काउंट लगा देता हूँ किसी गेटवे पे तो ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन बढ़ जाती है. अभी मैं जेएस वाले के साथ खड़ा था, वो ज़िंदगी से थे, तो मैंने उनको बोला हमने एक टेस्ट रन किया था जब ज़िंदगी लॉन्च हो रहा था वॉलेट, और वो लॉन्च पे पहली कैंपेन उन्होंने मेरे साथ की थी. हमने एक वीक के अंदर कोई 9-9,500 वॉलेट ओपन किए थे, और ट्रांजैक्शंस के साथ रजिस्ट्रेशन प्लस ट्रांजैक्शंस. क्यों? हमने एक सर्टेन डिस्काउंट ऑफर किया था कि आप डाउनलोड करें, ट्रांजैक्शन करें. आज मेजर प्रॉब्लम पहला कहाँ आता है? माइंडसेट पे जो आता हूँ वहाँ पे, कैश पे एक चीज़ आप खरीदते हैं एक ई कॉमर्स स्टोर पर लाख रुपए की है फॉर एग्जाम्पल, वही चीज़ आप इंस्टेंट पेमेंट पे जाते हैं, जैसे ही
अपने कार्ड्स पे, जहाँ आपको पता है बाद में टेंशन भी होनी है मुझे रिवर्सल्स में, चीज़ों में, सीधे सीधे 2,500 रुपये ऊपर चले जाएंगे क्योंकि 2.5% आपको गेटवे चार्ज कर रहा है। True. सही है। तो जब 1,00,000 रुपए की एक चीज़ पड़ रही है, दूसरी वही चीज़ मुझे 1,02,500 की पड़ रही है, तो इंसान बोलेगा यार मैं 2,500 बचा लूँ, एक बहुत अच्छा अमाउंट है बचाने के लिए। तो अब जाहिर सी बात है, ई कॉमर्स पे कस्टमर पूरा प्राइस सेंसिटिव है। ई कॉमर्स पे दो चीज़ें चल रही होती हैं, वन इज ट्रस्ट, वन इज प्राइस। सही है कि आपने उस पर ट्रस्ट किया, अब आप प्राइस देखेंगे अच्छी है। ई कॉमर्स में कस्टमर लॉयल्टी इज लिटरली जीरो। वो एक बराबर 4 टैब में अलग अलग वेबसाइटें खोलेगा, देखेगा किसके पास सस्ता है, वहां से खरीद लेगा। वो लिटरली 500 रुपए के चक्कर में 6 लाख रुपए का आईफोन दूसरे से खरीद लेगा। इतना प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है। तो अगर मैं उसको 2.5 लाख रुपए चार्ज कर दूं, फिर जाहिर सी बात है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में जो कह रहे हैं कि भाई अब मैं फॉर एग्जांपल 2.5% चार्ज करूंगा कस्टमर को, एक फोन पे बचना मुझे फॉर एग्जांपल 1% है, मैं उस पर किस तरह बेयर कर सकता हूँ 2.5%। तो लेकिन दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, वेल फंडेड हैं, वो ब्लीड करना शुरू कर देंगे पैसा। तो और दूसरी तरफ कस्टमर माइंडसेट में प्रॉब्लम क्या है, अब जब आपकी पॉलिसी इंटैक्ट नहीं है आपके मुल्क में, सही है, आज आपका दिल करता है ई कॉमर्स खोल लेगा, शॉपिफाई पे जाए, $1 का अकाउंट बनता है, 3 महीने आपको $1 चार्ज करेगा, यू कैन बिल्ड एन ऑनलाइन स्टोर, आपको कोई एनटीएन नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कोरियर आपके पास घर से आपके पिकअप कर लेगा। तो कस्टमर ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा हो गया, जिसकी वजह से कस्टमर कहता है यार हर बंदा ऑनलाइन स्टोर बना सकता है, विच मीन मैं हर किसी पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकता। इसका मतलब ये वो बोलेगा यार कैश ऑन डिलीवरी पे ही ले लो, जान छूट जाएगी मेरी। आज जैसे मल्टीपल स्टोर्स हैं, आप किसी बड़े से बड़े स्टोर्स हैं, लिटरली मैं कह रहा हूँ इतने बड़े स्टोर्स हैं, वो पेमेंट गेटवेज नहीं चला रहे। फिर और उनका भी देखिए, एक तो 2.5% बहुत बड़ा प्रॉब्लम, कस्टमर माइंडसेट, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा प्रॉब्लम, फिर जिस तरीके से रिवर्सल्स चलते हैं वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने अभी रिसेंटली एक टिकट खरीदी, मैं लाहौर जा रहा था, फिर टिकट कैंसिल हुई, सारी चीज़ें हुई, मुझे रिवर्सल आया मेरे ख्याल 43 डेज पे, 43 डेज मैंने काउंट किया बैठ के, सही है, 43 डेज में अगर मुझे रिवर्सल आ रहा है, जबकि मुझे पता है कि सामने जो प्लेटफॉर्म है उसने 1-2 दिन के अंदर रिवर्सल चला दिया था, मुझे ईमेल आ गई थी आपका रिवर्सल चल गया। लेकिन अगर वो बैंकिंग गेट उससे इतना स्लो चलेगा तो इंसान तो ये बोले ना जान छोड़ो। प्लस एज अ बिजनेस ओनर आज कोरियर आपको अगले दिन 70% पेमेंट कर रहा है, मल्टीपल कोरियर्स है जो ये काम कर रहे हैं, पेमेंट गेटवे कितने दिन में फैसिलिटेट कर रहा है, 3 से 5 दिन में। तो उसके लिए तो बेनिफिट ही नहीं है। आज जितने बिजनेसेस स्टेप इन कर रहे हैं ई कॉमर्स स्पेस में, वो तो कैश फ्लो चोक्ड है मुस्तकिल, उनको तो हाथ में पैसे चाहिए, उनको वही अच्छा लग रहा है कि मुझे हाथ में पैसे मिल जाए फौरन खेलने के लिए, क्योंकि उनका एक सर्टेन कैश फ्लो है, छोटा कैश फ्लो है। क्योंकि नॉर्मली जिस तरह ई कॉमर्स स्टोर्स बन रहे हैं, जैसे मतलब घर से लोग बना रहे हैं, ये जितनी हवा चल रही है ई कॉमर्स की, घर से बच्चे बना रहे हैं, सदर में जाके माल खरीदते हैं, बेच देते हैं, तो उनको हाथ में पैसे चाहिए जो कि कोरियर उनको दे रहा है, कोरियर दे रहा है, और कोरियर के पीछे भी फैसिलिटेटर बैंकिंग एप्स ही हैं। True, true. सही है, लेकिन वो बैंकिंग एप्स यहाँ पे आपको जल्दी फैसिलिटेट नहीं कर रहे। एक अभी जैसा प्लेटफॉर्म है जो कर रहा है, लेकिन उसके पास सिर्फ कार्ड की फैसिलिटी है, और कार्ड में भी उसके पास यूनियन पे पैक नहीं है, उसके पास सिर्फ वीजा मास्टर कार्ड है। तो इंसान किस तरह उस तरफ जाएगा। मैंने एक लिटरली इतना बड़ा गेटवे होल्ड किया अपने प्लेटफॉर्म पे, जिसके अंदर मैं मल्टीपल टाइम्स बहुत काम किया, और मैंने सिर्फ ये बोला, मतलब यार 5 दिन में पेमेंट करते हो, उसमें 2 रिवर्सल चलाए होते हैं, रिवर्सल उसमें से माइनस कर लेते हो, तो मेरे हाथ में तो कुछ आते ही नहीं है भाई। करोड़ों रुपए की पेमेंट आप लोगों के पास ही बड़ी होती है, हमारी तो। True, true. Excellent feedback. This is called the real market experience, and I would like to top up one thing because being MNPN, we are also into the banking sector as well, and the e-commerce side, MNP Logistic. तो मुझसे जब सवाल किया कि व्हाट्स योर इनपुट टूवर्ड्स द डिजिटाइजेशन ऑफ दिस सेक्टर, तो एक बड़ा अलमिया आपको मैं बताता हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट दैट COD इज़ अराउंड 85 to 90%, एंड द रीज़न जो हमारी डिजिटल अगर 220 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स हैं, अगर आप देखें इसको सेक्टर को, तो 2 बड़े सेक्टर हैं जहाँ पे एक यूथ हमारी आती है, और उनके पास जो अंडर 18 के बच्चे हैं उनके पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं है, और जो जिस टाइम पे पार्सल या शिपमेंट आपके घर पहुंचती है, उस टाइम पे आपकी जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो घर पे होती है, उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो मैं बैंकिंग सेक्टर से अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप लोगों का जो माइंड सेट इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट साइड के लोगों को कैप्चर करना है, पर ये जो 2 सेक्टर्स हैं जिसे हम माइनर कहते हैं और हाउस वाइफ्स या हाउस होल्ड्स कहते हैं, ये बड़े निगलेक्टेड हैं। द मोमेंट वी रियलाइज़ कि इन 2 सेक्टर्स को या 2 सेगमेंट्स को हम जिस दिन ई कॉमर्स की या डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर आ गए, आपकी इकोनॉमी COD से ऑटोमेटिकली डिजिटाइज हो जाएगी। द फर्स्ट थिंग इज़ अ माइंड सेट, द सेकेंड बिगेस्ट थिंग इज़ अ बैरियर to provide the credit cards or the digital payments to the youth and the households. So, Secretary sir, towards the same question to you. So my view, I think I agree. अहमद ने मेरे ख्याल से काफ़ी bluntly बता दिया है कि 80 to 90% COD है, और आई थिंक साथ के प्लेटफॉर्म पे भी इनको नज़र आ रहा होगा कि यही सिचुएशन है। सो
सो व्हेन आई लुक एट इट, हम बहुत अरसे से ये भी कोड क्रैक करने की कोशिश करें कि यार हाउ कैन वी एक्चुअली डू समथिंग, और हमने एक पूरी एक सिमुलेशन रन की. सो व्हेन यू टॉक अबाउट कैश, शौकत साहब चले गए मेरे ख्याल से, ही वुड एग्री कि 5 से 7% तो कॉस्ट ऑफ कैश है जो कि स्टेट बैंक और बैंक्स आपस में बेयर करते हैं. True, कंज्यूमर के लिए फ्री है. सो सबसे बड़ा इशू ये है कि इट्स फ्री. अब आप दूसरी साइड पे आ जाएं तो कंज्यूमर साइड पे ट्रस्ट इशू है. ट्रस्ट इशू के केस में आपके पास, जैसे इन्होंने बताया, कि कोई रेगुलेटरी एस्पेक्ट नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है जो ग्रेड कर सके. आपने करीम यूज़ की होगी, मैंने भी की थी. वो कंज्यूमर को भी ग्रेड करते थे, कैप्टन को भी ग्रेड करते थे. कि रेटिंग आती थी, यू वुड बी इन अ क्लियर कि आपने 4.8 वाला कैप्टन बुलाया तो सही होगा. सो दैट रेटिंग इज़ मिसिंग इन द इंडस्ट्री. देन अगर आप उसको कॉस्ट ऑफ कैश को मर्चेंट एंड पे देखें तो आई थिंक आप एज अ लॉजिस्टिक्स पार्टनर, अहमद, मर्चेंट या सेल्स कर रहे हैं या सेलर हैं, तो आपकी कैश हैंडलिंग की कॉस्ट भी कुछ कम नहीं है. बहुत कंजर्वेटिव मैं ले लूँ तो 3 से 5% True. होगी. ठीक है. अब जब आप ये सब बिल्ड कर दें तो उसके बाद, और फिर MDR का एक कंसर्न भी है कि 2.5% का MDR है जो कि आप जेब से दे रहे हैं, कैश के ऊपर कैश है, लेकिन वहाँ पे वो एट्रीब्यूट नहीं हो रही. वेलोसिटी ऑफ मनी आप देखें तो ये बहुत ही क्रिमिनल है इन दिस डे एंड एज कि आपको T+3 और T+5 पे सेटलमेंट हो रही. दुनिया T+0 और T+1 पे आ गई है. सो ये सारे चैलेंजेस आप देखें तो इट्स नॉट जस्ट द कंज्यूमर मिसट्रस्ट. एक्चुअल में तो आपकी पूरी मर्चेंट बेस जो है वो ही डिस्ट्रस्ट में है कि यार रिवर्सल की इन्होंने बात की. मोस्ट ऑफ द गेटवेज डोंट हैव एनी ऑटोमेटेड रिवर्सल मैकेनिज्म. अब आप कर लें, आप रिपोर्ट निकालेंगे, आप उसमें एक कोई बंदा बैठ के हाईलाइट करेगा, फिर वो भेजेगा, फिर जवाब आएगा. सो इमेजिन दी बैगेज विच यू आर क्रिएटिंग विद दिस. ऑन दी अदर साइड आपके पास इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, विच इज़ इनिशियली आप किसी ना किसी लेवल पे ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे. आई रिसेंटली समबडी शोड मी के कैश ऑन डिलीवरी पे 250 रुपये है डिलीवरी फ़ी, और अगर प्रीपेड ऑर्डर है तो 1 रुपये है. आई थिंक वन ऑफ द ब्रांड्स, अभी 2 दिन पहले की बात. आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच एंटाइसेस समबडी कि चलो यार कुछ सेविंग हो रही है, इंसेंटिवाइजेशन. बट ओवर आर्चिंग मैं सजेस्ट यही करूँगा कि इस पूरे मॉडल के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन लानी पड़ेगी. True. अहमद बैठे हैं, साथ बैठे हैं, B2C B2B दोनों साइड. ठीक है, हम B2C और B2B में, लेकिन B2B हमारा नॉट द कन्वेंशनल B2B. अगर सिर्फ मैं आपको 2 इंडस्ट्री एग्जांपल्स देता हूँ. आई बीन पार्ट ऑफ टू प्रोसेसेस. एक OneLink है, 11 बैंकों ने मिलकर बनाया था. रिगार्डलेस आप कुछ भी कहें, लेकिन 20 साल में इट हैज़ डिलीवर्ड. सिमिलरली आप टेलको से अगर कोई है तो टेलको में एक पॉइंट पे टावर शेयरिंग आई तो कॉस्ट नीचे गई, सारी चीज़ें हुई. सो आपको भी इस पॉइंट पे किसी ना किसी तरह नेगेटिव कस्टमर लिस्ट बनानी पड़ेगी. कौन है जो फ्रॉड करता है, कौन है कैश ऑन डिलीवरी पे. आपने रिटर्न्स की बात नहीं की. रिटर्न्स बहुत मेजर इशू है COD पे. Right. ऑलमोस्ट मुझे कोई 30% कह रहे. सो ये सारी चीज़ें अगर डेटा आपस में किसी तरह एक एंटिटी के पास हो तो यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू लैंड, बेटर पोजीशन टू ब्लैक लिस्ट. आई थिंक मैं फ्लिपकार्ट का पढ़ रहा था और अमेजोन का, दोनों ब्लैक लिस्ट करते हैं. अगर आप हाँ बिल्कुल. 5 बिलियन का बेसिकली जो चार्जबैक है 1% है पूरी दुनिया में जनरली. वीज़ा मास्टर कार्ड की रिपोर्ट अगर आप देखें, 1% की वजह से आप 99% कस्टमर्स को पेनलाइज करते हैं अक्रॉस द ग्लोब. अमेजोन 500 बिलियन साल का राइट ऑफ करता है इन चार्जबैक्स, लेकिन आप सोचे ट्रस्ट इतना है कि उसकी ट्रांजैक्शन, आप ग्रोथ देखें अमेजोन. सो आई थिंक होलिस्टिकली ये सारे जो पेन पॉइंट्स हैं इनको एक जगह कंसोलिडेट कर दें तो सॉल्व हो सकता है. इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं ना वो साथ बैठे. हमारा मेजर कंसर्न ये होता है कि स्टेक होल्डर साथ बैठने को तैयार नहीं है. जैसे इन्होंने बोला ब्लैक लिस्ट का, तो आई रजिस्टर्ड अ डोमेन आज भी मेरे नाम पे blacklist.pk. सही है. और मैंने सारे मेजर प्लेयर्स को ऑन बोर्ड किया. मैंने बोला यार मिलते हैं, हम अपने डेटा को एग्रीगेट करते हैं एक जगह पे कि भाई ये हमारा वेंडर है जो कि फ्रॉड है, ये हमारा कस्टमर है जो कि फ्रॉड है. मतलब ये कोरियर्स को भी लाए हैं, पेमेंट गेटवेज को भी लाए, वो सब एक जगह, और फिर हम उसकी APIs बनाएं, वो शॉपिफाई से इधर उधर से हर जगह से इंटीग्रेट हो. आपको पहले से हाईलाइट हो जाए कि इस कस्टमर को नहीं भेजना, ये रिटर्न करता है. Please. अच्छा, इसमें 2 चीज़ें मैं ऐड करूँगा कि ब्लैकलिस्ट वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए, फ्रॉड कस्टमर्स जो है ना ये हर जगह होते हैं और बहुत तंग करते हैं. तो हमारा एक SaaS प्लेटफॉर्म है, हम लोगों ने ब्लैकलिस्ट इनेबल किया हुआ है. जो भी हमारे 700 मर्चेंट्स हैं
उनका कोई डेटा किसी किस्म का कहीं भी शेयर नहीं होता सिवाय ब्लैक लिस्ट कस्टमर का। और वो अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट्स के लिए काफ़ी कारगर है कि अगर वो कोई एक नंबर से अगर वो फ्रॉड कोई भी कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है तंग करने की, मस्ती करने की, तो वो नंबर आइडेंटिफाई हम लोग करवा देते हैं और वो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म हम नंबर को शेयर कर रहे हैं। Right. दूसरी बात ये कि हर इंडस्ट्री के ना डिफरेंट चैलेंजेस है। ये हमारे जैसे फूड इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये है कि जो कैश ऑन डिलीवरी की जो COD इज किंग हम कहते हैं, यहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ा मसला है कि जो मर्चेंट है, जो रेस्टोरेंट है, वो खुद ही अडॉप्ट नहीं करना चाह रहा। वो खुद ही कहता है यार कि मैं अगर क्रेडिट कार्ड पे गया तो मेरे लिए कंप्लाइंस शुरू हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। तो मोर देन 50% ऑफ रेस्टोरेंट जो है वो सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी में काम कर रहे हैं और वो खुश हैं। और वो अब कहते हैं यार कि अच्छा वो हम काम नहीं कर रहे, तो जो 1 जुलाई से जो टैक्सेशन और लग गए हैं और दे आर हैप्पी मोर, क्योंकि उनके राइडर्स भी खुद होते हैं और वो कोरियर कंपनी भी यूज़ नहीं कर रहे, तो दे आर स्टिल इन नो टैक्स जोन। और जो ऑनलाइन पेमेंट्स में वो अब टैक्सेशन में और ज़्यादा आ गए। Right. So, moving towards the last two question, and that is considered as a rapid fire. Actually, a rapid fire. Short answers, can I? This is called a future trends. So, will BNPL in the B2B business and the B2C in both the cases become the next big thing? Do you really see that it is going to be a game changer in the future for the e-commerce side, especially in the Pakistani segment? So, I'll start from you. बिल्कुल, जहाँ भी हाई टिकट आइटम्स इन्वॉल्व हो गई वहाँ BNPL की वजह से ग्रोथ आएगी और आनी है, बिल्कुल आनी The है। second thing with this thing, and what is your expectation and from whom? Two things. The BNPL will be the next future, the game changer, and if yes, what is your expectation and from whom? देखिए दोनों चीज़ों से, लैंडिंग कंपनीज और जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बड़ा स्कोप है पाकिस्तान में। Right, sir. Only if there is an infrastructure for credit worthiness, otherwise no future. अगर क्रेडिट गेम आपका स्कोरिंग का चीज़ों का सही नहीं है, वैलिड नहीं है, BNPL बिल्ड ही नहीं हो सकता कभी भी। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे आई डोंट थिंक सो BNPL बिल्ड हो सकता है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, लेकिन ऐसा ही है, होना यही है हमारा। Very realistic. 100% एग्री टू अहमद। एंड सी करंटली अभी सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि यहाँ पे कोई डेटा एक्सचेंज सेंटर नहीं है, कोई रेगुलेटर ऐसा नहीं है जो कि आपस में डेटा शेयर करे और एक क्लियर विजिबिलिटी दे कि व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर हु इज ट्राइंग टू ट्रांजैक्ट। So this is something which is need of an hour. It's right really a food for thought for the bankers who are sitting here, that we encourage BNPL, but with their concerns. So with this thing, I would like to thank all of you. And there are a number of questions, a number of things which we'll discuss after this session. With this end, that नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से, ज़रा नाम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ खाकी. And we have a huge potential. It's a $1 trillion market, and I always believe that we are just waiting for the right movement with the right support and right infrastructure. You will see the game changer, and I'm glad the way the diversification and the diversified portfolio here, who is representing Pakistani product, is emerging. So one last thing, one last round of clap for my friends, and thank you everyone. Thank you very much for this very engaging discussion. I would request Kamal Masroor Sahab for the souvenirs. Iftikhar Arif, Director IT M&P, Moderator. Ahmed Rauf Isa, CEO Telemart. Iftikhar, thank you very much. आप बस साकी को खाकी बोल गए इकबाल के शेर में। मैं थोड़ा तेजी में बोल गया। एहसन हुसैन, कंट्री हेड सिम-पैसा. एहसन असलम, MD गो लूट लो. एंड लास्ट साद झंडा, CEO इंडोलजी.